recalling how he created a billion-dollar company in his book, Diamonds Are Forever, So Are Morals. In conversation with Mr. Govind Dholakia, we have our first discussant, Mr. Pratap Verma, a business coach, mentor, and storyteller. He is the chief advisor to Confederation of MP for Industry Services and Trade, Compist, a solution-based inspirational speaker who provides value multiplication to individuals and organizations. Followed by our second discussant, Professor R. Shivagunde. He has 41 years experience in teaching, training, research, and consultancy, and has published 55 papers and authored 4 books. He is also a member of All India Bureau of Vocational Education and has much more at hand. I'd request you to initiate the conversation, sir. Good afternoon, everyone. I would like to present Mr. Dholakia ji here. He is the Diamond King of India, having a turnover of almost 17 to 18,000 crores per annum. And he initiated his business with just 250 rupees. That was way back in 1970. And today he owns a private plane and all kinds of luxuries and materialistic things. But he is a down-to-earth person who believes in simplicity, humility, kindness, gratitude, and he is a man of principles and values. And that's why he's named his book, Diamonds Are Forever, So Are Morals. So, in fact, his entire company is based on ethics, and in his company no one is, everyone has taken a pledge to be addiction free, so people don't smoke, people don't drink. Anyone who is found to do that is out of the company the same day. And his business model is very, very different from all other companies in India. But it somehow there matches with Tata's and Azim Premji, because their DNA and his DNA, they are the same. These people have earned money, but they have also spent the money back for the greater good of the society. And Mr. Dholakia has opened up a big hospital in Surat. He has a major garden in Surat. He has placed Surat as one of the top 10 clean cities of the country. It was the dirtiest one time in the whole country. And he has worked during the earthquake time for the government and also in the plague epidemic. And he is running 6-7 schools and so many other philanthropic activities he is doing in the area of Surat. And I would like him to highlight the business model. जो उनका business model है, वो है people, purpose, profit and planet. ये उसके 4 धुरी हैं, इसके साथ में family को उसके साथ कैसे ढालना है, फिर ज्ञान और विज्ञान और एम्पैथी को कैसे एक साथ बिजनेस मॉडल में ढालना है, ये इन्होंने करके दिखाया है और इस वजह से इतने सक्सेसफुल हुए हैं. और मैं चाहूँगा कि इस मामले में वो प्रकाश आज डालें और मैं शिवगुंडी जी से कहूँगा कि वो भी कुछ संबंध में से जो पूछना चाहें वो पूछें. वेल, धन्यवाद. डॉक्टर गोविंद धोखलिया जी का जो किताब है डायमंड्स आर फॉरएवर एंड और मोरल, इनकी इतना ही नहीं, ये फाउंडर एसआर के डायमंड्स एंड एसआर के नॉलेज फाउंडेशन के फाउंडर है, लीडिंग डायमंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन है. ये किताब मुझे जब मिला, मैंने उसको फास्ट रिव्यू किया तो कुछ चीज़ें इसमें अद्भुत है जो दूसरे किताबों में हमें पढ़ने नहीं मिला. ये किताब इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी है, जो सत्यता की खोज, उनके जो किताब है वो किताब से काफ़ी प्रेरित है. मैंने इनसे काफ़ी वार्तालाप किया. मैंने पूछा, लार्जर कम्युनिटी विथ वेल बीइंग, वेलफेयर, एक वेलफेयर टाइप की इंडस्ट्री चलाते हैं ये, और ये अद्भुत इनका
ये पहले कभी देखा नहीं था। वैल्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल भी भारत में सक्सेस होता है और लीडिंग होता है, और इन्होंने बहुत टर्बुलेंट एरिया में बिजनेस का ग्रोथ किया है। पिछले 5 डिकेड में आपने देखा होगा कई स्कैम होते, कई इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकरप्ट होते, ऐसा नहीं हुआ। लगातार ग्रोथ रहा, लगातार लोगों का बेनिफिट देते गए। और ये किताब में समटाइम्स वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं कि बिजनेस इज एक्सप्लॉयटेशन। कभी हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ये हमको कभी लगता है नो, इन्होंने जो मॉडल पेश किया है अपना एम्पायर का, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं, उसका उल्टा ट्रुथ है। बिजनेस इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस लोगों के लिए है, हम देने के लिए पूरा मेहनत किया है। इन्होंने ये देना जानते हैं लोगों को, लेना नहीं है। और ऑथर्स फॉलोज, जैसा मैंने कहा, श्री भगवद गीता है मास्टरी, ऑल वर्सेस है इनका, गिविंग टू प्रॉपर सोसाइटी, नॉट टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी। इनका हार्डवर्क किताब में, कमिटमेंट, इथिक्स, ऑनेस्टी, if Indian values makes one successful life in to serve society। ये बहुत इंस्पायरेशनल किताब है, ये सामान्य किताब नहीं। और इससे यंग जनरेशन को स्पेशली अगले 50 साल में एक ऐसा मिसाल पता लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी अद्भुत बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। हमने बाकी कई बिजनेस मॉडल की चर्चा करते, कई एंटरप्रेन्योरशिप की करते, कई, बट ये वैल्यू बेस्ड बिजनेस, फैमिली, सोसाइटी एंड उनका बेनिफिट, ये इसमें दिखता है। और इसलिए हम उनको नमन करते हैं। और मैं उनको उनके किताब के बारे में कैसी प्रेरणा मिली और कैसा किताब, मैं उनको रिक्वेस्ट हिम टू जस्ट टॉक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्ये च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वर्मा साहेब ने शिवगुंडे साहेब, आप सौ पधारे हुए हमारे माननीय श्रोतागण, मोरारी बापू की कथा होती है ना, तो मोरारी बापू ने 909 कथा की, एમાં मिनिमम श्रोता 3 थे और मैक्सिमम 3 लाख थे। ऐसे ये गोविंद काका यहाँ बैठा है तो आज 15 श्रोता भी है और गोविंद काका 1 लाख की श्रोतागण में भी बोले हैं। कभी लाख से भी 15 बड़ा होता है। क्यों? कि क्वालिटी या क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी होती है, यहाँ क्वालिटी है। तो हम बातचीत करेंगे, भाई साहब दोनों हमको बुक्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इससे पहले आपको 5-10 मिनट में सब समझा दूं तो क्वेश्चन बाकी ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये बुक क्यों लिखी? हमको कोई प्रतिष्ठा की जरूरत है, सबको मैं कौन हूं बताने की जरूरत है? भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने मेरा जीवन में 72 इयर्स में 300 साल का जीवन जिया हूं। इतना भरपूर जीवन जिया हो। मैं एक गांव का लड़का, हमारा गांव वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र में 700 की आबादी का गांव किसान पुत्र। हमारे गांव में जब स्कूल में लड़का जाता था तभी पहली बार चड्डी पहनता है
और 7वीं साल में जब वो होता है तभी वो स्कूल में दाखिल होता है। तो आपके सामने जो ये गोविंद काका बैठा है उसमें 6 साल सड्डी नहीं पहना और 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा। ये गामड़ियो गोविंद यही आपके सामने बैठा है। एक गामड़िया गोविंद का स्कूल किया है 7th तक, बट नॉट गिविंग 7th एग्जाम ऑल्सो। आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। बाद में यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया, वो अलग बात है, वो उनकी अज्ञानता होगी। तो बुक लिखने का कारण यही था कि मेरी पास 40 साल से डेली डायरी लिखी हुई है। दुनिया में सब लोग पिक्चर देखते हैं, खुद का कोई नहीं देखते। खुद का कैसे पिक्चर देखे, हम लिखते हैं। तो 40 साल में मैंने जो लिखा और मैं जब मेरे को पढ़ता था तो मेरे को भी आश्चर्य होता कि ऐसा था, मैं ऐसा मेरा थिंक था। तो हमारा फैमिली सब लोग बोलते थे कि आप सबको, हमने तो आप सब पहचानते हैं, तो हमारा तो जीवन आपने बनाया, मगर आप सब लोग को लाभ मिले ऐसे एक बुक बनाओ। बांधनी नहीं पा रही थी, नहीं था, इच्छा नहीं थी। कोरोना आया तो क्या करे कोरोना में, तो अरुण जिसने विंग ऑफ अब्दुल कलाम जी का बुक, मेरा फ्रेंड है, तो उसने बोला कि नहीं आप बुक लिखेंगे और मैं मदद करूंगा। वो है, मैं सूरत में बैठा कोरोना में और 2 साल में बुक बनी। ये बुक क्यों आप लोग देंगे तो आपको क्या फायदा होगा, तो आपका विजन क्लियर होगा कि भाई आई कैन, हमारा सेंटेंस है कंपनी का, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन, आई एम नथिंग, ईगोलेस, नो ईगो, ईगोलेस, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। तो 13 साल की उम्र में मैं 500 किलोमीटर दूरी पर साउथ गुजरात में सूरत आया डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। 6 साल फैक्ट्री में काम किया। पहला सैलरी 103 रुपीज का था, लास्ट में 600 का था। 3 फ्रेंड को मिलके 1970 में फैक्ट्री शुरू किया with only 2 worker. Today has more than 7,000 worker. And जो हमारा काम पहले था धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज 1.8 बिलियन में 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये जो जर्नी है, तो आपने मान लिया कि भाई जर्नी किया तो ये तो हो गया, पैसा तो सब लोग कमा सकते हैं। ये बुक इसलिए है मॉरल वैल्यू, मॉरालिटी। हमने डायमंड का हम बिजनेस करते हैं, हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए अगर एक भी बार झूठ बोले तो हम बिजनेस छोड़ दें। मॉरालिटी, पैसा सबको चाहिए मगर पैसा सब कुछ नहीं है। जीवन अलग है, जीवन सार्थकता अलग है। कोई बोले कि मुंगेरी लाल का सपना मत दे, अब भूल जाओ, यू फॉरगेट। आज में समय है नहीं, उसको क्यों याद करें। और क्यों फ्यूचर के लिए डोंट वरी फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कोई चिंता मत करो, क्योंकि जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है, वर्तमान अच्छा होता है, उनका फ्यूचर अच्छा ही होता है। तो हम वर्तमान को सुधार लो, प्रेजेंट को सुधार लो, प्रेजेंट में जियो। मेरा जीवन पूरा प्रेजेंट में गया है। आज अच्छा किया तो कल उनका फल मिलेगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये रथ का 2 व्हील होता है। अगर एक प्रारब्ध चला,
मगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारा रथ वहां ही वहां घूमेगा। अगर प्रारब्ध में है, पुरुषार्थ हमने किया मगर प्रारब्ध में नहीं है, तो भी रथ वहां ही वहां घूमेगा। दोनों चाहिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो ये सब बुक में आप मार्गदर्शन यही है कि मेरा हृदय का जो भाव था वो मैंने अंदर डाला है। अगर आप पूछेंगे तो बुक में मालूम पड़ेंगे कि यू कैन, कुछ भी हो सकता है। आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग, दूसरा हमारा सेंटेंस है। आई एम नथिंग, और दूसरा है प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्योंकि मैं खेत में काम करता था 13 साल के पहले, 14 घंटा ये डे सनलाइट में और धूप में, और 14 घंटा फैक्ट्री में 6 साल 14 घंटा काम किया। सुबह 8 बजे फैक्ट्री शुरू होता था, रात को 8 बजे, 6 से 8 14 घंटा काम। फिर भी रात शाम को बहुत फ्रेश होते थे। क्यों? खेत में काम करने में सनलाइट, धूप था। यहाँ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में सच थी, तो धूप नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आफ्टर 14 आवर्स वर्क वी आर वेरी। तो ये प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस, क्योंकि पहला प्रॉब्लम था खेत में, इसलिए यहाँ प्रोग्रेस हुआ। और डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग किया 14 घंटा, इसलिए हमको ये फैक्ट्री शुरू करी, मिला। डोंगरे जी महाराज के अभाव में हूँ। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, पहला 68 में पहली बार जब मैं वर्कर था तो हमारे भागवत कथा थी उनकी सूरत गांव में। तो सूरत में ऐसे तभी तो 3-4 लाख की वस्ती थी, ओनली 3 लाख, आज 80 लाख है, 8 मिलियन। तो तभी खाली 3-4 लाख की आबादी थी। हम 3 फ्रेंड घूमने को गया, वहां भागवत कथा चल रही थी, तो हमारे कान पर आवाज आया, तो मैंने समाधि अवस्था जैसा हो गया, मालूम कुछ नहीं पड़ा, मैं कथा में बैठ गया। 17-18 साल का बच्चा तभी बैठ गया और कथा में बहुत आया। मैं शाम को हमारा बॉस के पास चला गया, मैं दिन काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे को कथा सुनने की है। तो बोला तू काम पर नहीं आएगा तो मेरी चैनल अटक जाएगी, तेरे को हर दिन 20 डायमंड को ब्रूटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने रास्ता निकाला कि हम रात को आके बना देंगे। तो शाम को 6:30 बजे फैक्ट्री में जाता था, 12-1-2 बजे तक मैं 20 डायमंड बना देता था। पूरा दिन भागवत कथा सुनता था। भागवत कथा में आया कि अगर आपको मान चाहिए तो आपको भरपूर मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। कैसे? तो कि ये सृष्टि का नियम है, अदृश्य शक्ति काम कर रही है, कुदरत, नेचर, भगवान, उनका सिस्टम है कि आप जो दो वही आपको वापस मिलता है, अनेक गुना मिलता है। अगर आप डोनेशन करो, पैसा दो, आपको पैसा मिलेगा। आप विद्या दो, आपको विद्या मिलेगा। आप कुछ भी दो, किसी को मान दो, आपको मान मिलेगा। मैंने बोला ये तो सही है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि आप हिमालय में चले जाओ, लाखों पहाड़ियां है, वहां जाकर अगर कोई बोलेगा भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसे हम देते हैं संसार में तो हमको वापिस मिलते हैं। तो मैंने सोचा ये मुफ्त में है, तो मैंने हमारी फैक्ट्री में 40 लोग हम थे और सब बच्चे लोग छोटे छोटे यंग थे, 15 से 25 इयर्स का था। सब नाम से ही बुलाते, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे। कांजी भाई होते तो कांजी कान्यो बोलते थे, लालजी भाई तो लालो बोलते, ऐसे सब बुलाते थे। मैंने दूसरे दिन फैक्ट्री में जाके सबको आप बोलने को शुरू किया, लालजी भाई, कांजी भाई। सब लोग बोले ये गोविंदा नु खही क्यों है, तो उनका माइंड चला गया है। तो सब मेरी मश्करी करने लगे, सब लोग मेरी मश्करी करे, मैं थोड़ी हंसावट, कुछ नहीं, खाली हंसी दे दूं। 2 महीने में ऐसा चमत्कार हो गया कि बॉस चाय मंगावे तो आधी मेरे को पिलावे, बॉस के पास मेरी सीट हो गई। और सब जो लोग मेरी मश्करी करते थे, अगर कोई मेरी मश्करी करे तो 3 लोग आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना, मैं गोविंदा था, मुफ्त में 2 महीने में गोविंद भाई आप हो गए। तो चला, मैं फॉर्मूला बहुत अच्छी है। फिर पूरी दुनिया मैंने जीत ली ये फॉर्मूला से, पूरी दुनिया। क्यों?
कि मैंने सबको मान दिया, उसका क्या रिजल्ट आया? ये 50 साल में किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, 50 साल में। तो मैं पूरा जीवन भरपूर हो गया, दुनिया जीत गया। फिर क्या हुआ, मेरा छोटा भाई को भी मैं आप कहने लगा, बाद में मेरा भांजा भतीजा सबको मैंने आप बोला। उसके बाद में उनका भी जनरेशन, थर्ड जनरेशन आया, सबको जन्म से आप ही बोलने का, किसी कभी ने तू बोला ही नहीं किसी को। उनका मैं यहाँ साथ में लाया हूँ, मेरा पौत्र को, भांजा का बेटा है केविन भाई, अपने उभा था। ये केविन भाई जो है, आज तक मैंने उनको कभी केविन नहीं बोला, केविन भाई बोलता हूँ जन्म से आज तक। उनको मेरे को अपमान कब करेगा, वो करेगा कब? मैं उनको इतना मान देता हूँ। तो मैं ये तो सैंपल लाया हूँ। हमारे 15 यंगस्टर है, हमारे 15 यंगस्टर है। तो देखो भगवान की कृपा से, जैसे ने सत्य ने कोई साक्षी ની જરૂર નથી, ऐसे डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस था, इसलिए वो मेरे जो गांधी जी की आत्मकथा मैंने 55 साल पहले पढ़ी थी, सत्य का प्रयोग हो, तो उससे मेरे सत्य के ऊपर बहुत भाव आ गया था और सत्य हो गया था। मगर डोंगरे जी महाराज ने ऊपर थप्पा लगा दिया। डोंगरे जी महाराज का सेंटेंस था कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं। संपत्ति में पैसा, संतति में जनरेशन, ये प्रारब्ध के मुताबिक मिलते हैं। इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा डायमंड मार्केट में इसलिए मेरा ओपन चैलेंज है कि हम एक भी बार झूठ बोले पैसे के लिए और बिजनेस के लिए, तो आप बिजनेस छोड़ दे। तो ये सब कुछ, और आप बोले कि क्या आपको क्या, तो मैं आपको ये बोल दूं कि भगवान की कृपा से हमारी 5 पूरा फैमिली की 5 नियर टू 200 कार है। उसमें रोल्स रॉयल पेट्रोम, क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोम 10 करोड़ वाली वो भी है। और अपने પાસે કઈ છે ફરારી છે। પછી ભાઈ ઓલી અર્જન કાકાની રાહુલભાઈની કેટલી છે? બે તમારે કેટલી છે? તમારી કઈ છે? ये એટલે ये तो सब मैंने दिया। बाकी मर्सिडीज और उनका तो डजन बंदी है, सब BMW सब कुछ है। मेरा बच्चे को समझाया है, बुक में भी लिखा है कि हमको कार कभी सुख नहीं दे सकती। अगर कार सुख दे सकती है तो 2-3 महीने आया था यूपी में एक डॉक्टर 160 की स्पीड में जाता था, 200 की स्पीड में, 4 फ्रेंड मर गए। तो भाई कार सुख देती हुई तो वो क्यों दुख आया उसका फैमिली में? कार सुख नहीं दे सकती, सुख अपना स्वभाव दे सकता है। ये बात है कि सुख अपना स्वभाव में है। तो मैं सब हमारा यंगस्टर को समझाता हूँ कि अगर ये कार है वो हमारा सब कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ है हमारा फैमिली। तो हमारा फैमिली को महत्व दो, क्योंकि कार हम घर के लेते जाते हैं तो हम कभी हॉल में ले गए, कार को हम कभी बेडरूम में ले गए। कार तो कहाँ तक आती है? गैरेज तक, उनका स्थान वहां खत्म होता है। जीवन हमारा शुरू होता है हमारा घर में, हमारा फैमिली के साथ, हमारा माँ बाप, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बालको, वहां से हमारा जीवन शुरू होता है। उनको महत्व देने का ये तो सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो ईश्वर है, ये बात है। अभी हमारा समय भाई खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन रह गया। अभी डायमंड्स आर फॉरएवर ने गोविंद काका जी फॉरएवर है, इनका विचार फॉरएवर रहेगा। आपने सुना तो आपको एक अद्भुत लगा, उनको लगा कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, हम उसको कर्म और भाग्य कहते हैं। ये दोनों जो पुरुषार्थ से ही अपना जो प्रारब्ध है वहाँ तक पहुँच सकते। इनका प्रारब्ध भी हिमालय जैसा ऊंचा है, इनका पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा है। मैं इस किताब
आपके बारे में इसके बारे में आपको अभी थोड़ा बहुत अवगत तो हो गया। आपके कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ लीजिए। इनके सबसे शक्ति है इनकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के लिए हमने महात्मा गांधी जी को तो किताब में ही पढ़ा, प्रत्यक्ष देखने को मौका नहीं मिला, लेकिन हमने अभी देखा कि सिंप्लिसिटी को एक खोज कहते हैं। सिंप्लिसिटी की शक्ति को एक प्रभाव डालने की, सिंप्लिसिटी शक्ति को एक खोज का दर्जा दिया गया है। इनको एक खोज पहले से पता है कि इनके प्रारब्ध में है। इनकी सिंप्लिसिटी ही इनकी महान शक्ति है, इनके सोचने में, इनका बिजनेस करने में। ये जो सिंप्लिसिटी विथ मॉरल, विथ वैल्यूज, इससे इतना बड़ा इंडस्ट्री हो सकते हैं, बहुत चमत्कार से कम नहीं है। बाकी बिजनेस मॉडल तो आपको जानते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक दो सवाल पूछ लूँ। हाँ सर, मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो डायरेक्टर है ARY ज्वेलरी में दुबई में। शी हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, इट्स अ प्रोफेशनल क्वेश्चन, इट्स ऑन कि जो अमेरिकन डायमंड, जो आर्टिफिशियल डायमंड है, उनका फ्यूचर विद नेचुरल डायमंड के क्या है? ये जो अमेरिकन डायमंड है तो ये तो 20 साल पहले की 25 पहले आया। उनको बोलते हैं क्यूबक जर्कोनिया, उनको बोलते हैं अमेरिकन डायमंड को। ये इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अभी जो नया डायमंड निकला लैब ग्रोन, जो को CVD बोलते हैं, ये डायमंड के नजदीक का उसका स्ट्रेंथ है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा डायमंड के बिजनेस के ऊपर? तो देखो, दोनों जब नजदीक का कोई पण कंपटीशन आती है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर वो ज्यादा टाइम नहीं रहता है। क्योंकि मुश्किल क्या था कि ये लोग लैब ग्रोन को कहीं, सब लोग नहीं, कहीं लोग ने उसको डायमंड करके बेच दिया। ये गलत था। जब मार्केट को मालूम हुआ, उसका मशीन आ गया। अभी लैब ग्रोन का नाम से बिकते हैं, डायमंड का नाम से बिकते हैं। डायमंड का जितना अभी माइंस है पूरा वर्ल्ड में, एमा कोई माइंस की सबसे कम उम्र 65 मिलियन ईयर्स, 6.5 करोड़ साल है, और ज्यादा से ज्यादा 9.5 करोड़ साल है। तो डायमंड जो अपने हाथ में अभी आता है, उसकी उम्र है 6.5 करोड़ साल से 9.5 करोड़ साल। अभी आज हमने नया डायमंड बनाया और 6.5 करोड़ साल की उम्र का है, तो फीलिंग में फर्क पड़ेगा। तो रियल डायमंड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, हजारों साल में भी नहीं आएगा। कृत्रिम वो कृत्रिम होता है, अपना हैंडमेड ही हैंडमेड होता है। कभी भी जो कीमत होती है वो असल की होती है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड अभी बिजनेस ओनली है 10% देन डायमंड, मगर फ्यूचर में 20 साल डायमंड की जितना अमाउंट में हो जाए तो कोई नक्की नहीं है, क्योंकि डायमंड का इतना बड़ा बिजनेस वर्ल्ड लेवल में नहीं है। 80 बिलियन का डायमंड ज्वेलरी बिकता है पूरा वर्ल्ड में, और माइंस में से वो 15 बिलियन का निकलता है। वहां से होके ज्वेलरी बना, अंदर आया कंज्यूमर के, तो पूरा वर्ल्ड का 80 बिलियन का बिजनेस है। तो उससे बड़ा खाली मैकडोनाल्ड एक का बजट है। एक पूरा डायमंड छोटा है, तो उसमें 3 ऐसा साइज नहीं है। खरीद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम। तो ये लैब ग्रोन डायमंड भी चलेगा, उनका नाम से चलेगा, और रियल डायमंड भी चलेगा। चीज़ और थी जो मैं बताना चाहता था कि ये जो किताबें मैंने लगभग पूरी पढ़ी हुई है, और इससे मुझे जो लर्निंग्स मिली वो ये है कि आपको अपने आप पे बिलीफ होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो आप पे बिलीव अपने आप पे करेगा, वो दूसरों को भी अपने बिलीफ सिस्टम में ला सकता है, और वही लीडरशिप होती है। और उससे आदमी विलिंगली अगले के लिए काम करता है, और उससे गोल सेटिंग जो होती है वो पूरी हो सकती है, और इंस्पिरेशन भी मिलती है। क्योंकि जब गोल सेटिंग आप करते हो तो इंस्पिरेशन भी आती है। इंस्पिरेशन, और जैसे सर का है
कि सर इंस्पायर्ड होते हैं जब दूसरा अगला इंस्पायर्ड होकर कुछ तरक्की करता है, वो आगे बढ़ता है। तो ये एक अलग तरीके की अनुभूति होती है जो इन्होंने अलग तरीके से जो सीखी, जो मेरे समझ में आई कि 3 स्टेप्स होती हैं, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। ये तीनों स्थिति का जब आप इथोस लोगोस पैथोस को जोड़ लेते हैं तो ये स्थिति आ जाती है कि आप हैप्पीली अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं। आपका कैरेक्टर वैसे होता है, आपकी वैल्यूज़ उस पर साथ साथ जनरेट होती हैं और उसको उन्होंने स्टोरी फॉर्म में किया हुआ है। तो आज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्किल्स उन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं 10 और अगले 15-20 साल के लिए, वो सारी 10 की 10 स्किल जो हैं, अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो वो स्किल्स आपको आत्मसात हो जाएंगी, आपके साथ आ जाएंगी। इसीलिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा। तो मैं खाली कितना मिनट बाकी है अपना? 5 मिनट है ना। देखो, मैं खाली मूल्य के बारे के मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ। आप लोग नहीं माने, सब लोग नहीं मानते, मोर देन 80% नहीं मानते, 20% लोग मानते हैं। मैं IIM में भी जाता हूँ लेक्चर देने को, तो 5 बार जाके आया। लास्ट हमारा 17 सितंबर में ही था। तो पहली बार मैं जब IIM में गया तो IIM में पहला क्वेश्चन था कि आपको पूरी गीता मौखिक है, वो सही है? तो मैंने बोला हाँ, गुजराती में मेरे को बाय हार्ट है। तो बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उनको कभी पूरी गीता बाय हार्ट नहीं होती है, और जिसको गीता बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते हैं। तो आप दोनों कैसे हो गया? तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर आपको आंसर दूंगा तो आपको अनुकूल नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग 80% पूर्व जन्म को नहीं मानते, मगर मैं मानता हूं। आपने क्वेश्चन किया तो मेरे को कहना पड़ेगा कि पूर्व जन्म को क्यों मानता हूं। कि गीता जी मेरे हाथ में आई, वो मेरा गांव में, मैं 5वीं पढ़ रहा था और गांव में एक छोटा मंदिर था, उसमें गीता लाके किसी ने रखा होगा। हम बच्चे के हिसाब से कबाट में सब देखते थे, इसमें गीता जी हाथ में आया, और आज मालूम पड़ता है कि वो समाधि अवस्था था। मैं भान भूल गया, कुछ मालूम नहीं, ऐसा हल्का फुल्का हो गया, ऐसा लगा। मैं गीता जी पढ़ने लगा गुजराती में, तभी कोई ग्रामर का मालूम नहीं, कोई शब्द मालूम नहीं, खाली क ख ग इतना आता है। फिर मैं पढ़ना लगा, एक बार पढ़ा, दूसरी बार मैंने बोला मैं बाय हार्ट करूंगा। फिर मैंने बाय हार्ट करने का शुरू, तो 16 साल की हमारी उम्र में पूरी गीता गुजराती में पक्की हो गई। तो ये किसने किया? कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही। इसलिए बुक का मेन सिद्धांत है, मेरा 3 सिद्धांत है। उसमें पहला है कि ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है, ही सब कुछ करते हैं। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, तो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। जिस हम आपकी मिलाया है, कहाँ सूरत, कहाँ भोपाल, ये हमारा कोई बुक का बिजनेस नहीं है। फिर मैं क्यों आऊं? क्योंकि बुक बना के मैं वो लाइन में चले गए। तो आपको जान के आनंद होगा, मैं बड़ापन के लिए नहीं बोलता हूं, मगर लोग क्या होता है कि उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता है। यहाँ मैं आया ये फंक्शन में, मैं किस लिए आया? मेरे लिए, कि मेरे को यहाँ कुछ मिलेगा। मेरी बुक का सेल होवे कि नहीं होवे उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तो लिख दी, मेरी बात खत्म हो गई। मेरा दूसरा पढ़े तो उनको फायदा होगा, मेरे को उसमें क्या होगा? तो मैं क्यों आया? मेरे लिए कि कोई भी साहित्य का कोई ऐसा काम होता है, पुस्तक का, वहां जो लोग आते हैं वो विचारक आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, कुछ सोच, कुछ लेने का ये भाव से आते हैं, कुछ देने का है वो भाव से आते हैं। यही लिए आज हम यहाँ आए हैं। और आपको जान के थोड़ा वो लगेगा कि हमारा खुद का प्लेन है। हम अभी सूरत से फ्लाइट लेके आए हैं, 15 लाख का खर्चा करके यहाँ आपके सामने आए हैं। एक दिन गया, 15 लाख खर्चा किया, तो फिर क्यों? आपको किसने बनाया? वो ईश्वर की योजना किसकी है?
ईश्वर की है। तो भगवान की कृपा से आप लोग को जो मिलने का आज मौका मिला, ये ईश्वर की कोई योजना है। हम यहाँ आए तो आप सब लोग के लिए हम नहीं आए, 2, 3, 4, 5 लोग का भगवान ने जीवन बनाने का है, उनका उद्देश्य से हमको यहाँ भेजा है। क्योंकि डोंगरे जी महाराज की कथा में 30,000 लोग बैठे थे, 30,000 को फायदा नहीं हो गया होगा, हमारी जैसा 50, 100, 200 को फायदा होगा। जिसने उसका अनुकरण किया, अनुसरण किया, उसने भगवान ने वो खोल दिया, उनको फायदा होता है। तो यहाँ जो अपना आज से 2, 3, 5, 10 ऐसा लोग होगा कि जिसका आज से नया जन्म होगा, उसके लिए भगवान ने हमको भेजा है। तो भगवान की कृपा से जब भी भगवान योजना करेंगे तो हम फिर से मिलेंगे। आज हमने जो कुछ बोला उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान ने हमको बुलाया वो बोला है। तो अगर आपको कोई अच्छा लगा तो ये भगवान का काम है, अगर आपको कोई हर्ट हुआ है हमारा बात से तो वो क्षमा याचना। फिर ये आयोजकों का, वर्मा साहब का, शिव गुंडे साहब और पूरा जो भी यहाँ आयोजक है, चंद्रा साहब वगैरह, सब का हमने मान सम्मान दिया और यहाँ खाना खिलाया, आप सब लोग को मिलने का हमको मौका दिया। तो सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। बहुत दूर सर जी, बहुत दूर शोलापुर से एक नरसिंह मेंग जी मंत्री जी आए हैं, उनको एक प्रश्न पूछना है आपको, आपका सुनने के लिए उतने दूर से आए। प्लीज, तो आप आइए सर। सबको प्रणाम। गोविंद भाई, आज आपसे मुलाकात हुई, हमारा सौभाग्य है। आप ईश्वर को मानते हैं और हम भी ईश्वर को मानते हैं। जो कर्म आपने अच्छा किया है उसका फल आपको अच्छा मिला है। आपको पता है, गुजरात की धरती ने हीराबेन के पेट में एक हीरा दिया है। आज जो नरेंद्र पूरे देश दुनिया में आज अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ही सूरत के गोविंद भाई, जिन्होंने अपने बिजनेस से पूरे विश्व में नाम कमाया है, एक डायमंड का बिजनेस उनका बहुत ही काफ़ी है। मैं शोलापुर में रहता हूँ महाराष्ट्र में, मगर हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आज सौभाग्य मेरा है कि आपसे मिलना हुआ। मुझे एक सवाल छोटा सा मेरा है, आप इतने बड़े डायमंड के बिजनेस मैन हो, आप बिजनेस करते हो, तो खुद डायमंड क्यों नहीं पहनते, ये मेरा सवाल है। नहीं, ये तो कारण है खाली शौक का। क्योंकि डायमंड हर दिन देखो 15,000 करोड़ का कारोबार, तो हर दिन 50 करोड़ का डायमंड आते जाते रहते हैं हमारे ऑफिस में। तो 50 करोड़ का डायमंड तो हर दिन जाते हैं, तो फिर शौक कैसे रहेगा कि मैं एक 20 करोड़ रुपया की पहनूं। एक बात तो वो हो गया। दूसरा है हमारे पास, मगर तो कोई ऐसा कोई प्रोग्राम आवे दिखावा करने के लिए यहाँ तो नहीं लाते। कोई लग्न प्रसंग होता तो कभी पहन लेते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज सर हमारे आपकी बातें सुन के सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, हमारे पास रीमा आहूजा मैम है।